اچھا دیکھو، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد للہ علی کل حال ونعوذ باللہ من حال اہل النار سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. تو ہم جو ہے بیع سلم پڑھ رہے تھے. بیع سلم وہ بیع کہلاتا ہے جس میں سند پہلے دی جاتی ہے اور مبی جو ہے یعنی ایک مقررہ وقت پر دی جاتی ہے، مبی بعد میں. سمجھا گئے؟ تو اب اس میں کچھ شرائط تو ہم اس میں جو ہے کچھ یعنی 7 شرائط ہم نے پڑھے تھے کہ مبی کا جنس، چونکہ مبی اس میں جو ہے قرض ہوتا ہے. سمجھے؟ مبی بعد میں دی جاتی ہے اور سمن پہلے لی جاتی ہے. سمجھا گئے؟ تو اب وہ مبی جو بعد میں دی جاتی ہے اس کا جنس معلوم ہونی چاہیے، نوع یعنی کس قسم کا ہے، نوع معلوم ہونی چاہیے. اس طرح صفت بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ردی ہو، گٹیا ہو، اعلیٰ ہو، متوسط ہو، ادنیٰ ہو. اور اس طرح مسلم فیہ، سمجھا؟ یعنی مبی کی مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے کہ کتنی کلو کا چاہیے آپ کو. اس طرح مدت بھی معلوم ہونی چاہیے. سمجھا کہ اور 6 اور 7 شرائط میں سے جو مختلف ہوئی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق جو ہے وہ راس المال کبھی مقدار معلوم ہونے چاہیے. ساتھ میں جہاں پر مبی کو سپرد ہے یعنی مسلم فیہ کو سپرد کرنا ہے، جہاں پر وہ جگہ بھی متعین ہونی چاہیے. سمجھا گئی؟ تو ہم نے کہا تھا کہ یعنی جنس بھی، نوع بھی، مدت بھی، صفت بھی. سمجھا گئے؟ مقدار بھی معلوم ہونی چاہیے. تو اب ہر وہ ایسی چیز جو جس کی مقدار معلوم نہیں ہونا نہ ہو، سمجھا کہ یعنی جس کا جو ہے ایک جنس، مثال کے طور پر یہ حیوانات ہو گئے. اب کوئی کہے کہ مجھے یہ والا حیوان ہو یا مجھے چاہیے، سمجھا؟ تو وہی والا تو حیوان نہیں مل سکتا نا. یعنی آگے جا کر جو ہے اس میں یعنی خو بخو ایک حیوان دوسرے کے مشابہ نہیں ہو سکتا. سمجھا کہ تو اسی وجہ سے جو ہے حیوانوں میں کیا ہوتا ہے، بیع سلم جائز ہی نہیں ہے. سمجھے؟ بہرحال جو کہ کل جو ہے اس کے بارے میں سبق گزر چکا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا کپڑوں میں جو ہے، کپڑوں میں بیع سلم جائز ہے یا نہیں ہے. یہ مثال کے طور پر یہاں پر میری صدف ہے یا فوزیا ہے. فوزیا جو ہے وہ مجھے کہتی ہے کہ باجی اس طرح مجھے کپڑے چاہیے، سمر ابھی لے لو، یعنی مجھے 2 مہینے بعد دسمبر میں مجھے یہ والا سردی کے کپڑے دے دو. سمجھا گئے؟ اب آیا اس نے مجھے صفت بھی بتا دیا، نوع بھی بتا دیا کہ گرم کپڑے چاہیے، مقدار یعنی سوٹ بھی بتا دیا کہ ایک وہ نہیں ہے. سمجھا؟ اور کہا کہ اعلیٰ قسم کے، سمجھا، جسے رنگ نہ جاتا ہو، یعنی اعلیٰ قسم کے ہونی چاہیے. اب آیا اس میں بھی بیع جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو امام قدر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جی بالکل اس میں بیع جائز ہے. سمجھا؟ کیا ہے؟ بیع جائز ہے یعنی جس کا طول بھی معلوم ہو، عرض بھی یعنی لمبائی بھی معلوم ہو، چوڑائی بھی معلوم ہو، اور اس طرح جو ہے اس کا کیا کوالٹی، سمجھا کہ حقیقت یعنی مطلب کوالٹی جو ہے اس کا معلوم ہو، تو پھر جو ہے یہ جائز ہونا چاہیے. ویسے اصل میں پہلے زمانے میں جو ہے وہ ہاتھ سے کپڑے بنائے جاتے تھے. کیا ہے؟ ہاتھ سے کپڑے بنائے جاتے ہیں. تو ہاتھ سے جب کوئی کپڑا بنتا ہے تو خو بخو ایک کپڑے دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتا. سمجھا؟ خو بخو جو ہے ایک دوسرے کے مشابہ نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے پہلے زمانے میں جو ہے اس طرح بیع سلم جائز نہیں ہوتا تھا کپڑے میں. لیکن آج کل اس طرح امام قدر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کپڑے ایک جیسے ہو جائے، کیونکہ آج کل جو ہے مشین کے ذریعے سے بنائے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی ہر قسم کا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کپڑا مل سکتا ہے. اب اگر آپ ویرائٹی بتا دیں، کیا ہوتا ہے کوالٹی بتا دیں، اور مقدار، نو، صفت سب کچھ بتا دے تو پھر جو ہے وہ مل سکتا ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے مقرر وقت جو ہے وہ بازار میں بھی موجود ہو تو پھر جو ہے اس کپڑے میں جو ہے بیع سلم جائز ہو سکتا ہے. دیکھو وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِي الثِّيَابِ، جائز سلم فی الثِّيَابِ کس چیز میں؟ کپڑوں میں. اذا سما، جبکہ مقرر ہو جائے، معلوم ہو جائے، طولاً اس کی لمبائی، و عرضاً اس کی چوڑائی، و رقداً اور اس کی حقیقت یعنی کوالٹی. سمجھا گیا؟ اس طرح جو ہے دوسری مسئلہ یہ ہے دوسری مسئلہ یہ ہے کہ آیا یہ موتیا جو ہے، یہ ڈائمنڈز وغیرہ جو ہوتا ہے، آیا اس میں بھی بیع سلم ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. سمجھا گئے؟ تو امام قدر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جواہر اور اس طرح موتیوں میں بیع سلم جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ جو ہے اس کی مقدار بھی معلوم کرے، نوع بھی معلوم کرے، لیکن ایک موتی جو ہے دوسرے سے نہیں مل سکتی. سمجھا؟ آپ اس کا حتیٰ کہ اس کا آپ ایک کو دکھا دے کہ اس طرح مجھے دے دو. سمجھا کہ اس طرح مجھے دے دو، ابھی سمجھ لے لو، بعد میں مجھے دے دو. سمجھا؟ دسمبر میں 2 مہینے کے بعد ایک مقرر وقت کے بعد جو ہے دے دے. تو چونکہ یہ جواہرات اور اس طرح موتی جو ہے یہ بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں. کیا ہو سکتے ہیں؟ بڑے چھوٹے ہو سکتے ہیں. تو اس میں فرق ہوتا ہے نا. تو فرق کی وجہ سے جو ہے خو بہو جو ہے وہی
नहीं दी जा सकती, यानी सिफात में फिर जो है मुश्तबह लाजिम आएगा, समझा कि सिफात जो है मुंजबित नहीं हो सकेंगे, तो इसी वजह से इसमें बया सलम जायज नहीं होगा। वला यजूज, अब अगर उसने बाई ने उसको 1-2 महीने के बाद जो मुकर्रर वक्त पर जो है उसने डायमंड दे दिया, जवाहिर दे दिया, मोती दिया, लेकिन बाई मुश्तरी ने कहा कि है ये तो मैं नहीं मांग रहे थे, और ये तो मैं नहीं मांग रहा था, मैं एक और मांग रही थी, तो फिर ये झगड़ा पैदा होगा कि नहीं, समझे, तो इसी वजह से जो है इसमें जायजा नहीं होगा। वला यजूज़ु सलम फिल जवाहिर वला फिल खरज, और नहीं है जायज क्या सलम फिल जवाहिर, जवाहिर में, व फिल खरज, खरज कहते हैं मोती को, समझ आइए, मोतियों में जायज नहीं है। आगे फरमाते हैं कि कच्ची और पक्की ईंटों में जो है वो जायज है या नहीं जायज है, तो इसमें जो है इमाम कुदरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि हाँ, यानी जब वो ईंट का एक सांचे होते हैं ना, जिस इसकी सांचे होते हैं, अपने सांचे होते हैं, उसी के जरिए से जो है वो ईंटियां बनाई जाती है, समझ आ गई हो, ईंटियां चाहे पक्की हो या कच्ची हो, समझ आ गई हो, तो वो बनाई जाती है, तो जब वो सांचा मालूम हो ना, तो फिर जो है इसमें भी सलम जायज हो सकता है। वला बास बिसलम फिल्ला बने, और कोई हर्ष की बात नहीं है सलम करने में, फिल्ला बने किसी कच्ची ईंटों में, वल आजुर्रे, और इस तरह पक्की ईंटों में, इजा सम्मा मिल बनाना, इजा सम्मा जब के क्या हो, इजा सम्मा जब मुकर्रर हो या मालूम हो, मिल बनन मालूमन यानी सांचा, समझ आ गई, यानी वो ईंटों का सांचा होता है ना, वो मालूम हो, तो फिर जो है कोई हर्ज नहीं है बया सलाम में, समझ आ गया। आगे जो है इमाम कुदर रहमतुल्लाह अलैह जो है एक कायदा हमारे लिए बयान करते हैं, वो कहते हैं अब हमने तो मसाले है कि इसमें जायज है, इसमें जायज है, तो दुनिया में तो बहुत सारी चीजें हो, तो सबको तो किताब में जिक्र नहीं करते, तो इसकी वजह से जो है एक कायदा कुल्लिया बयान किया है, समझे क्या है, कायदा कुल्लिया बयान किया है कि किन चीजों में बय सलाम जायज है और किन चीजों में बय सलाम जायज नहीं है। तो इसके बारे में कायदा कुल्लिया ये बयान किया कि जिन चीजों की सिफात को जब्त करना, क्या, जिन चीजों की सिफात को जब्त करना मुमकिन हो, समझ आ गई, तो फिर उसमें बया जायज है, लेकिन और क्या हो, लेकिन जिनकी सिफात जो है वो जब्त करना मुमकिन ना हो, तो फिर उसमें जायज नहीं होगा। मसलन मकीलात हुए, मौजूनात हुए, मजरूआत हुए, इस तरह अददी चीज़ें जो कि गिन कर भेजे जाते हैं, तो अब उसकी अगर क्या हो, उसके अफराद अगर ज़्यादा मुतफर्रिक ना हो, जैसे अखरोट अखरोट हो, तो अब अखरोट अखरोट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा सा एक छोटा होता है, एक थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन हैवानात में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, समझ आ गई हो, तो बस जिन चीज़ों की सिफात को मुंजबित करना मुमकिन हो, तो फिर उसमें सलम जायज़ हो जाएगा, और जिन चीज़ों का जब्त करना मुमकिन ना हो, उसमें सलम जायज़ नहीं होगा। देखो, वकुल्लु मा अमकन ज़ब्तु सिफाती, और हर वो चीज जिसकी सिफत महफूज करना क्या हो, मुमकिन हो, व मारिफतु मिकदारिही, और इस तरह उसका मिकदार क्या हो का पहचानना मुमकिन हो, जायज़ सलम फीहे, तो उसमें बय सलम जायज़ है। व मा ला युमकिनु ज़ब्तु सिफातिही व मारिफतु मिकदारिही, और जो जिसका सिफात जो है और इस तरह उसकी मिकदार का पहचानना मुमकिन ना हो, ला यजूज़ सलम फीह, इसमें जो है क्या होती है, इसमें बयसलम जायज नहीं है। बस ये बयसलम का टॉपिक जो है वो खत्म हो गया है, समझ आ गया। वो यजूज़ बैउल कल्बि वल फहद वस्सिबाही, यहाँ से जो है मसाइल मुतफर्रिका यानी मुख्तलिफ किस्म के मसाइल जो है वो जिक्र किया है, जिसका बयसलम के साथ ताल्लुक नहीं, और आज जो है ये बया के मुतालिक है कि आया ये खिंजीर हुआ या इस तरह ये कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, इसका ये तो हराम जानवर है ना, तो हराम जानवरों की बया जायज है या जायज नहीं है। तो सबसे पहले आप लोग ये बात जान ले कि कुत्ते, समझ आ गए, यानी ये चीता हुआ, दरिंदा हुआ, ये शेर बिड़िया वगैरह को फरोख्त करना जायज है, समझ आ गए हो, लेकिन कुत्ता जो जिसको इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह नजसुल आइन, ये तो नजस भी है ना, क्या है, ये कुत्ता जो है ये नजस भी है, समझ आ गए हो। अब कुत्ता, समझ आ, इसका सिर्फ लुआब जो है हमारे नजदीक नजस है, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह इसका बदन भी नजस है, समझ। बहरहाल अब इस कुत्ते का बया जायज है या जायज नहीं है, समझे, इसकी खरीद और फिर इस तरह इसका लेना, आजकल जो है लोग तो पता नहीं क्या क्या कुत्ते के साथ करते हैं, नाउज़ु बिल्लाह मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना, अल अमान वल हफीज, लोग जो है अपने घरों में लेते हैं, समझ आ गए, 1-1 लाख रुपए पर खरीदते हैं, हालांकि शरीयत में उसका रखना जो है वो क्या होते हैं, फरिश्ते नहीं आते। हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तदखुलू ला तदखुलुल बैता, क्या, ला तदखुलुल मलाइकता फिल बैति, जिसमें क्या हो, यानी जिस घर में जो है वो क्या हो, कुत्ते यानी
उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते जिसमें दो किस्म की चीजें हो, एक तस्वीर, समझा क्या तस्वीर यानी पिक्चर, और दूसरा जो है कुत्ता, समझा गया। तो देखो बहरहाल मकसूदी बात क्या है कि कुत्ते की खरीद फरोख्त जायज़ है या जायज़ नहीं है। तो इमाम शाफी और इस तरह इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मुख्तलिफुन फीही मसला है। इमाम शाफी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक वो कहते हैं कि कुत्ते की फरोख्त जायज़ नहीं है। क्या है? जायज़ नहीं है, क्योंकि हदीस शरीफ में आता है, उसकी दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अन समनिल कल्ब, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत लेने से मना किया है। तो कुत्ते की कीमत कब कब बनती है? तब बनेगी ना जब क्या हो, उसको बेचा जाए या उसको खरीदा जाए, समझा कि उसको बेचा जाए या खरीदा जाए, जबकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है क्या किया है? मना फरमाया है। और समझा गए हो? आगे अहनाफ फरमाते हैं कि नहीं, जिस कुत्ते का पालना जायज नहीं है उस कुत्ते का बया करना भी जायज नहीं है, और जिस कुत्ते का पालना जायज है और उसका बया करना भी, और उसका खरीद और फरोख्त यानी लेन देन भी जायज है। तो अब कौन सा कुत्ता पालना जायज है? तो तीन सूरतों में जो है, हदीस से तीन सूरतें साबित होती है जिस सूरत में जो है वो क्या होता है, कुत्ता पालना जायज है। पहला ये है कि अपने घर को हिफाजत करने के लिए, अपने घर यानी किसी का घर जो है किसी अजनबी जगह हो, समझो उसके आसपास कोई और घर ना हो, समझो मोहल्ला ना हो, तो फिर वहां पर यानी वो अकेला जो है वो रह रहा हो, तो फिर अपनी घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रख सकता है, समझा गया। दूसरा ये कि शिकार करने के लिए, बारिश तो शिकारी जानवर होते हैं ना, ट्रेनिंग शुदा, समझा गया। तो ट्रेनिंग शुदा कुत्ते का भी यानी शिकार करने के लिए रखा हो तो उस कुत्ते का इस्तेमाल करना भी जायज है, क्या पालना भी जायज है। तीसरा ये कि अपने गाय, अपने जानवरों की हिफाजत के लिए, पहले जमाने में ऐसा होता था कि ये जानवरों का रेवड़ होता था, समझा गया। और उस रेवड़ कभी कभार ऐसा होता है ना, ये भेड़िया जो होते हैं, समझे, जिसको अरबी में कहा जाता है, यूसुफ में जो इसका जिक्र भी आया, तो ज़िबुन, समझा गया, भेड़िया भेड़िया जो होते हैं वो बकरियां खाती है, समझा गया, वो खा लेते हैं। तो उसको हिफाजत के लिए, रेवड़ की हिफाजत के लिए जो है पहले जमाने में जो है वो क्या करते थे, कुत्तों को पालते थे। तो इन तीन सूरतों में जो है कुत्ते का पालना जब जायज है, तो अब कुत्ते के जाहिर सी बात है शिकार के लिए तो कुत्ता खरीदना पड़ता है ना, तो उसका खरीदना भी जायज है। इन तीन सूरतों के अलावा इसका खरीद और फरोख्त भी तो जायज नहीं है, और ना इस तरह जो है वो क्या है, पालना। आजकल लोग जो है शौकिया के लिए कुत्ते रखते हैं, हत्ता कि बेड पर भी सुलाते हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा तो ये कुत्ते का इस्तेमाल करना यानी इमाम शाफी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जो है मुतलकन कुत्ते की फिरोख्त की ममानियत है, जबकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उन्होंने एक कायदा कुल्लिया बयान किया कि जिस कुत्ते का पालना जायज़ नहीं उसकी बया भी जायज़ नहीं है, और जिस कुत्ते का पालना जायज़ है उसकी बया भी जायज़ है। हमारी दलील तो हो गई, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी दलील ना सॉरी शाफी रहमतुल्लाह की दलील हो गई, समझ आ गई हो। और हमारी दलील ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन समनिल कल्बि वस्सिन्नौरि इल्ला कल्बा स्वाइदिन, समझिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते और इस तरह बिल्ली के क्या करे, कीमत से मना किया, सिवाय किस चीज के, शिकारी कुत्ते के। जब शिकारी कुत्ते की इजाजत मिल गई तो इससे मालूम होता है कि बाकी दो सूरतों में भी इजाजत होगी। हम उस दलील का जवाब देते हैं, शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस इस्तेदलाल में पेश किया उस हदीस को हम जवाब देते हैं कि ये हदीस से वो कुत्ते मुराद है जो जरूरत के लिए इस्तेमाल ना करते हो, यानी शौकिया के लिए जो लोग इस्तेमाल अब क्या करते खरीदते हो, तो उसकी मुमानियत है। देखो वयजूज़ बैउल कल्बि वल फहरि वस्सिबाई, और जायज़ है कुत्ते, चीते और पाड़ खाने वाले जानवरों की बया, समझ आइए। तो मैंने बता दिया जो इख्तिलाफ में क्या कर दिया कि कौन सी सूरत में जायज़ है, कौन सी सूरत में जायज़ हो नहीं है। आगे जो है वला यजूज़ बैउल, आगे जो है खमर और खिंजीर, शराब और खिंजीर की बया, समझ जाके। तो चूंकि हमने जो है क्या कर दिया, शराब और खिंजीर जो है ये नजसुल आइन है। नजसुल आइन का मतलब ये होता है कि ये पूरा नापाक है, हत्ता कि एक शराब का एक कतरा भी जो है वो पानी में गिर जाए तो वो जो है नापाक हो जाती है, क्या हो जाती है, वो नापाक हो जाती है, समझा कि वो पानी नापाक हो जाते, कपड़े पर लग जाए कपड़े नापाक हो जाए। इस तरह खिंजीर भी नजसुल
आयन है, यहाँ तक कि वो खिंजी जो है उसके साथ दूसरे कपड़ों पर क्या हो जाए, गुजर जाए, यानी वो लग जाए तो कपड़े बिना पाक हो जाते हैं। समझ आ गया? अब इस शराब और खंजीर नजसुल आयन है, इस वजह से इनकी बया जायज नहीं है, क्योंकि हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुर्रिमत तिजारत फिल खम्र, कि क्या है, शराब की तिजारत हराम कर दी गई है। हुर्रिमत तिजारत फिल खम्र, के खमर में, शराब में तिजारत हराम की गई। समझ आ गया? इसी तरह फतमक खिंजीर जो है, समझा गया, फतमकी के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मुर्दार, खिंजीर और बुतों को पूजना ये हराम कर दिया। अब ना बुतों का पूजना नहीं, सॉरी, बुतों का बेचना, क्या बेचना, यानी इसके खरीद और फरोख्त को हराम करा दिया। देखो, शराब भी नजस है, मुर्दार भी नजस है न, यानी हराम है, खिंजीर भी नजस है, बुत तो है ही नजासत। समझा गया? अब ये तो हो गया क्या है, वला यजुज़ु बैउल खम्र वल खिंजीर, और जायज नहीं है शराब और खिंजीर की बया। अब यहाँ पर आजकल जो जदीद मसला निकलता है, अल्कोहल। अल्कोहल समझे? अल्कोहल, अल्कोहल की खरीद फिरोख्त जायज है या जायज नहीं है? समझे? फिर अल्कोहल की मुख्तलिफ किस्में आता है, तो इसके बारे में मुतलकन सिर्फ एक कायदा याद रखें। समझे? ये मुख्तलिफ ही मसले भी है, और इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जो है वो कहते हैं, यानी ये इंशाल्लाह किताबुल अशरबा में आगे बयान भी आएगा, जहां पर हम तफसीली ये बात जिक्र करेंगे। लेकिन सिर्फ आप यहाँ पर ये एक कायदा जान लिए कि जिस चीज का जायज इस्तेमाल मुमकिन हो, क्या, जिस चीज का जायज इस्तेमाल मुमकिन हो उसकी बया जायज है, और जिस चीज का जायज इस्तेमाल मुमकिन ना हो तो उसकी बया भी जायज नहीं है। अब अल्कोहल की भी मुख्तलिफ किस्में आती है। समझ आ गया? इसमें बात जो है वो खालिस जो होता है वो शराब ही के एक किस्म होता है। समझ आ गया? तो फिर उसका इस्तेमाल जायज नहीं होता। लेकिन वो अल्कोहल जो कि दवाइयों में इस्तेमाल होती है, जो अल्कोहल शराब में इस्तेमाल होता है वो मुख्तलिफ होता है जो दवाइयों में इस्तेमाल होती है। समझ आ गए? तो जो दवाई वाला होती है तो फिर उस जो उसका जायज इस्तेमाल होता है ना, तो फिर उसका इस्तेमाल क्या होगा, खरीद फरोख्त भी जायज होता है। आगे देखो, वला यजूज़ु बैउल खम्र वल खिंजीर, और जायज नहीं है शराब और खिंजीर की बया। समझ आया? शराब और खिंजीर की बया जायज नहीं है। आगे क्या है, वला यजूज़ु बैउ दूध। अच्छा, रेशम की कीड़ा, आप तो जानते हो ना, रेशम, रेशम जो कि एक क्या होता है, हमारे मर्दों के लिए, यानी मुसलमान मर्दों के लिए उस पर हराम है, और मुसलमान औरतों, और उसका इस्तेमाल जो है वो क्या होता है, जायज़, यानी मर्दों के लिए हराम है और औरतों के लिए जायज़ है। बहरहाल रेशम बहुत ज्यादा नरम सा होता है। अब रेशम की बया तो जायज़ है, समझ आए कि वो है। लेकिन रेशम का कीड़ा, ये रेशम भी तो कीड़े से बनाया जाता है ना, आप लोगों ने देखा होगा किस तरह अल्लाह ताला की कुदरत जो है वो इंसान की, क्या होता है, इंसान हैरान हो जाता है कि किस तरह एक कीड़े से जो है वो रेशम बनता है। समझ आ गया? तो देखो, अब वो रेशम का कीड़े की बया जायज है या जायज नहीं है। इस तरह मक्खी, समझ आया कि ये शहद का मक्खी जो होता है, जहाँ जो शहद बनाते हैं, वो आया शहद की मक्खी जो है वो क्या है, जायज है या जायज नहीं है, शहद की मक्खी का बेचना। समझ आ गया? अब ये बात तो मुत्तफकुन अलैहि है, क्या है, मुत्तफकुन अलैहि है, कि अगर रेशम की कीड़े को रेशम के साथ बेचना चाहे तो फिर तो जायज है। समझ आए? जायज है। इस तरह अगर शहद के साथ मक्खी को बेचना चाहे, फिरोख्त करना चाहे, तो ये भी जायज है। लेकिन इख्तिलाफ इसमें है कि सिर्फ और सिर्फ जो है रेशम का कीड़ा बेचना जायज हो गया, विदाउट रेशम। समझ आ गई हो? तो फिर जायज हो गया। या इस तरह बगैर क्या है, शहद के, हनी के, उसका कीड़ा बेचना जायज है या जायज नहीं है? तो शेखैन फरमाते हैं कि नहीं, बगैर रेशम के, बगैर शहद के, सिर्फ कीड़ा और सिर्फ मक्खी का बेचना जो है वो जायज नहीं है। जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह फरमाए, उनकी दलील, शेखैन की दलील ये है कि ये माल नहीं है। क्या है? माल नहीं है। समझे? और जो चीज माल नहीं होता वो क्या होता है, जो चीज माल नहीं हो तो फिर उसका का बेचना भी जायज नहीं होता। समझ आ गया? इसी वजह से जबकि इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ जो है कीड़ा और सिर्फ मक्खी का बेचना भी जायज है। वो दलील में पेश करते हैं
کہ ہو یہ اسی وجہ سے نا کیا کہ ہو یعنی یہ کیڑا جو ہے یہ بھی تو ایک یہ فائدے کی چیز ہے، کیا ہے یہ قابل انتفاع ہے نا، تو جس طرح ریشم اور شہد اس سے نکلتے ہیں وہ مال کی درجے میں ہو جاتے ہیں، تو اس طرح ان کی بیع بھی تنہا جائز ہو جاتی ہے۔ دیکھو، ولا يجوز بیع دود القز، دودھ جو ہے وہ کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ یہ کیڑے کو کہا جاتا ہے، قز جو ہے وہ ریشم کو کہا جاتا ہے۔ ولا يجوز، اور جائز نہیں ہے، بیع بیچنا دودھ القز، ریشم کی کیڑا، الا مگر یہ کہ ان یکون ہو اس کے ساتھ الا مگر یہ کہ وہ ہو مال قز ریشم کے ساتھ، ولا النحل، اور نہ مکھی کا، الا مگر کس چیز کے، مال کوارات شہد کے ساتھ ہو۔ عسل بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوارات کا لفظ ہوتا ہے، سمجھ آئے؟ کوارات جو ہے کس چیز کے، یعنی یہ مکھیوں کا چھتا جو ہوتا ہے نا، چھتا تو آپ لوگ جانتے ہو نا جہاں سے شہد نکلتا ہے، سمجھ آ گیا؟ تو وہ مراد ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یعنی امام قدری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ذمہ جو ہے وہ عام معاملات میں مسلمانوں کی طرح ہے، سمجھ آ گئی کہ کس چیز کی طرح ہے؟ سمجھ معاملات میں مسلمانوں کی طرح، میں نے بتا دیا تا پہلے کہ کفار کے مختلف قسمیں ہوتا ہے، ایک وہ کفار جو کہ دارالحرب میں رہتا ہے، سمجھ آ گئی؟ جیسے یہ روس ہوا، یہ چین ہوا، یہ جو ہے یہ دارالحرب بھی ہوتے ہیں، کفاروں کی گھر ہوتے ہیں، تو اب اس کے رہنے والا کافر کو ہم حربی کہتے ہیں، سمجھے؟ اصطلاح میں حربی کہا جاتا ہے، اور وہ کافر جو کہ مسلمان ملک میں ٹیکس دے کر رہ رہا ہو، جزیہ دے کر رہ رہا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذمی، ذمی کہا جاتا ہے، قرآن میں بھی اس کی وہ آئی ہے، سمجھا کہ؟ اور دوسرا ایک وہ کافر جو کہ کیا ہے پاکستان یعنی اسلامی ملک میں جو ہے وہ ویزا لے کر رہ رہا، ایک تو ٹیکس دے کر رہ رہا اور ایک ویزا لے کر، سمجھے؟ جزیہ لے کر ہے، اور اس کو مستأمن کہا جاتا ہے، میم سین تا حمزہ میم نام میم نون، مستأمن، سمجھا کہ مستأمن کہا جاتا ہے۔ اب ذمی جو ہے وہ تمام معاملات میں مسلمانوں کی طرح ہے، سمجھا کہ کس چیز کی طرح ہے؟ مسلمانوں کی طرح ہے، یعنی اس کے ساتھ جو ہے خرید و فروخت بھی کرنا جائز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے ساتھ تو جو ہے بکری کا خرید و فروخت کی تھی، سمجھا کہ جب اس کے ساتھ خرید و فروخت، جب کافر کے ساتھ خرید و فروخت کرنا جائز ہے تو ذمی کے ساتھ بطریقہ اولا بھی جائز ہوگی۔ اب جو چیز مال جو ہے ان کے ہاں ہے تو وہ اس کا آپس میں بیچنا بھی جائز ہوگا۔ اب مثال کے طور پر خنزیر اور شراب جو ہے یہ ہمارے مسلمانوں کا مال نہیں ہے، اسی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اس کا بیچنا اور خریدنا بھی جائز نہیں ہے، سمجھا کہ؟ لیکن یہ مسلمانوں، یہ کیا ہے؟ شراب اور خنزیر یہ کفاروں کے ہاں مال ہے نا، وہ تو شوق سے کھاتے ہیں خنزیر، اور سمجھا گیا اور اس طرح شراب اس کے ہاں مال ہے، پیتے ہیں ہر وقت، تو سمجھا گیا؟ تو پھر اس کے ہاں وہ آپس میں ایک کافر دوسرے کو بیچ بھی سکتے ہیں، یعنی اس کے ہاں مال بھی بن سکتے ہیں۔ دیکھو، وَأَهْلُ الذِّمَّةِ فِي الْبَيْعَةِ، تو ذمی لوگ خرید فروخت میں کل مسلمین مسلمانوں کی طرح، الا فی الخمر والخنزیر، سوائے خمر اور خنزیر کے، کہ خمر اور خنزیر اور مسلمانوں کے ہاں مال نہیں ہے اور کفاروں کے ہاں مال ہے۔ فَإِنْ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيرِ، بس اگر انہوں نے آپس میں کیا کیا خاصتاً، اچھا فَإِنْ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ، بس ان کا خمر یعنی شراب پر عقد کرنا یہ ایسے ہی ہے کعقد المسلم علی العصر، جیسے کہ کیا کرنا، یہ جوس وغیرہ شربت پر جو ہے مسلمان عقد کرے، یعنی ہمارے ہاں جس طرح شربت پی جاتی ہے تو کفاروں کے ہاں اس طرح شربت پی جاتی ہے، سمجھ آئے؟ تو اس طرح جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ وَأَقْدِمُ عَلَى الْخِنْزِيرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ، اور ان کا خنزیر پر عقد کرنا ایسا ہے جیسے ایک مسلمان کا بکری پر خنزیر کرنا، یہ نہیں ہے کہ مسلمان اسے خریدے، یعنی آپس میں کفار جو ہے آپس میں خنزیر اور شراب کا معاملہ کرے تو پھر یہ ان کے ہاں جائز ہے، ہمارے ہاں جائز نہیں ہوگا، صحیح ہے؟ اچھا ایک جو ہے پوائنٹ کی بات ہو، میں نے خبر میں دیکھ لوں وہ مسئلہ، میں نے پیچھے آپ لوگوں کو بتایا تھا وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ والحربی فی دار الحرب، ربا کے مسئلے کہ اگر مسلمان جو ہے حربی کے ساتھ حربی سے کوئی چیز سود کے ذریعے سے لے لے، سمجھا گئے؟ تو اس میں ہم نے بتا دیا تھا کہ طرفین کے نزدیک یہ حلال ہے، کیا ہے؟ حلال اور جائز ہے، جبکہ امام یوسف اور امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک یہ حلال نہیں ہے، ربا تصور ہوگا، سمجھا گئے؟ سود تصور ہوگا، تو اس میں جو ہے یہ مفتابی قول جو ہے طرفین کا نہیں ہے، سمجھا؟ پچھلے
दिन मैंने बताया था कि यानी कल मैंने बता दिया था, यस्टरडे मैंने बताया था कि ये यानी अहनाफ का मुफ्तबिही तरफ़ैन का मुफ्तबिही कौल है। लेकिन कल मैंने वो फतावा में देखा था कि नहीं, तरफ़ैन का मुफ्तबिही कौल नहीं है, बल्कि इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का मुफ्तबिही कौल है। यानी हम किसी मुसलमान को भी ये इजाजत नहीं दे सकते कि हो क्या, अगरचे यहाँ पर इमाम खुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया तरफ़ैन का कौल है, लेकिन मुफ्तबिही कौल जो है वो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का है कि हो हम किसी भी सूरत में कि एक मुसलमान को ये इजाजत नहीं दे सकते कि काफिर के साथ जो है सूद का मामला करे। सही है यार, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आई हुई होगी। अच्छा देखो, ये तो हो गया बाबू सर्फ। क्या है? बाबू सर्फ। बाबू सर्फ ये बाब है सर्फ के बयान में। अभी 15 मिनट बाकी है, इस वजह से पढ़ते हैं, समझ आ गई, ये कीमती वक्त ज़ाया नहीं करते हैं यार। तो देखो, हमने बता दिया था कि हो यानी किस चीज़ की बया, मबी के अतबार से बया की मुख्तलिफ किस्में हैं, समझ आ गए। बया बया मुकायजा, इस तरह बया मुतलक, बया सर्फ, बया सलम, समझ आ गए। तो उसमें मुकायजा भी गुजर चुका था, समझ आ गई, जिसमें सामान को सामान के बदले में बेचे जाए, समझ आ गए। इस तरह बया बया मुतलक भी आम बया है, यानी समन के बदले में मबी बेचना, ये भी तो आसान है। बया सलम की बाब भी गुजर चुके हैं, बाबू सर्फ, समझे। सर्फ 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 का बयान अभी यहाँ पर आता है, समझ आ गए। तो सर्फ की लुग़वी मानी है सर्रफा युसर्रिफु तसरीफन, ज्यादती के मानी है और पलटने के मानी में है। क्या है यह? ज्यादती और पलटना। हमें इल्म सर्फ को सर्फ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक सिगा जो है दूसरी सिगा में मुंतकिल होता है, दूसरा सिगा तीसरी में मुंतकिल होता है, तीसरा चौथी में, समझ या फॉलो या फलाना या फॉलो तफालो तफालाना या फअलना, समझ आ गई हो। तो ये सारी चीजें जो है वो क्या होते हैं? मुंतकिल होते हैं, पलटते हैं। हम इसी वजह से मुसर्फ के मुसर्फ कहते हैं। बहरहाल यानी सर्फ का मानी है पलटना और ज्यादती, समझ आ गई हो। चूंकि अब इसका वजह तस्मीया ये बनता है कि चूंकि दराहिम और दनरी वो भी इधर उधर पलटते रहते हैं, नफा उसमें ज्यादा होती रही है, यानी हर वक्त पलटते रहते हैं और हर वक्त जो है ज्यादा होते रहते हैं। तो इस वजह से इस अक़द को सर्फ कहा जाता है। क्या कहते हैं? सर्फ। इस्तिलाही तारीफ ये है कि सोने को सोने के बदले में यानी ये कि दोनों तरफ, यानी सब आसमान का आपस में तबादले का नाम सर्फ है। आसमान का आपस में तबादले का नाम क्या है? सर्फ है। अब आसमान किसे कहते हैं? सोना, चांदी, दराहिम, दनानीर, केश, समझ आ गए। फिर ऐसे भी आता है, ये आजकल जदीद मसाइल में फ़िक़ही मक़ालात में ये आता है, मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब की किताब है कि हो ये केश को, यानी पाकिस्तानी केश वो करते हैं ना, पाकिस्तानी केश को अमेरिका केश के साथ मुतबादले हो जाए। तो अब आया यानी उसकी जो है क्या होती है, क्वालिटी जो है क्या होती है, वो ज्यादा होती है, समझ आ के बनिस्बत पाकिस्तानी रुपए के। वहां पर तकरीबन मेरे ख्याल से 120 125 पहले जमाने में इस तरह था, अब पता नहीं है। यानी उसका वो जो है उसका करेंसी जो है उसकी कीमत ज्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान की, समझे। तो फिर उसके लिए एक अलग से मसाइल होते हैं। हम सिर्फ यही समझ लेते हैं यार कि सोने को सोने के बदले में बेचना भी सरफ है, सिर्फ चांदी चांदी के बदले में बेचना भी सरफ है, या एक तरफ सोना हो और दूसरी तरफ चांदी हो, समझे। यानी सोने को चांदी के बदले में भी क्या है? बेचना भी सरफ है। यानी चाहे दोनों तरफ सोना हो या चाहे दोनों तरफ चांदी हो या चाहे एक तरफ सोना हो दूसरी तरफ चांदी है, ये भी आपस के बेचने में का नाम बया सर्फ है। बया सर्फ का सबूत जो है वो पहले बाबुर रिबा की हदीस में गुजर चुकी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? गंदुम गंदुम के बदले में क्या? गंदुम गंदुम के बदले में, सोना सोने के बदले में, चांदी चांदी के बदले। तो देखो, चांदी चांदी के बदले में, सोना सोने के बदले। अब गंदुम को गंदुम के बदले में बेचने का नाम सर्फ नहीं है। क्यों? क्योंकि गंदुम जो है ये आसमान के कबील से नहीं है। आसमान के कबील से सिर्फ चांदी, सोना, केश, समझ आ गए। यानी दराहिम दनानीर, समझ आ गई। दराहिम दनानीर का ये आसमान है। तो आसमान का आपस में बेचने का नाम बया सर्फ है। अब देखो, अस्वर्फ हुआ अलबैउ, सर्फ वो बया है इज़ा कान कुल्लु वाहिदिन मिन अवज़ैहि, जबकि हो उसके अवज़ैन में से हर एक मिन जिन्स असमानो, यानी समनों में यानी इसमें यानी दोनों आयों में से हर एक समन की जिन्स से हो। क्या हो? कुल्लु वाहिद मिन अवज़ैहि, दोनों आइवज़ों यानी आइवज़ैन में से हर एक मिन जिन्सिल असमाने, आसमान की जिन्स से हो, समझ आ गई हो। यानी सोने को सोने के बदले में बेचना, चांदी को चांदी के बदले में बेचना, या चांदी को सोने के बदले में बेचने का नाम बया सर्फ है। तो अब एक पॉइंट की बात हो जो कि पहले हमने बताया था कि
रिबा की दो किस्में हैं, रिबा नसीआ, रिबा तफाजुल। समझा कि हमने कहा था कि जब रिबा तब होता है, रिबा यानी जब उसको किस चीज के में, जब किसी चीज में कदर और जिन्स एक हो जाए तो उसमें रिबा तफाजुल भी मना है, रिबा नसी यानी उधार भी मना है, और यदन भी यदन कमी बीशी भी मना है। समझ गए? हाँ, अलबत्ता अगर बेचना हो तो बराबर सराबर देंगे और एक ही मजलिस में देना होगा। समझ आ गया? लेकिन अगर क्या हो, जिन्स तो एक हो लेकिन कदर मुख्तलिफ हो, जिन्स एक हो लेकिन कदर मुख्तलिफ हो, या कदर एक हो जिन्स मुख्तलिफ हो, तो इसमें में यानी नसी तो उदार तो हराम होगी, लेकिन तफाजुल जो है इसमें जायज है, यानी यदन बेअदन तो बेचना होगा लेकिन कभी बेची के साथ जायज हो जाती है। तो वही वाली मसला है कि बेसरफ की सेहत के लिए दो शराइत है। क्या है? दो शराइत है कि बस बेसरफ में तो उदार हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा सोना तो या तो सोने के बदले में बेचा जाएगा, या चांदी चांदी के बदले में बेचा जाएगा, या सोना चांदी के बदले में जाएगा। अब इन चीजों में तो कदर तो मुतय्यन है, या क्या है, कदर मुतय्यन है, लेकिन कभी कभी इसके साथ जिन्स भी आ जाते हैं और कभी जिन्स मुख्तलिफ होता है। जैसे सोना सोने के बदले में बेचना, ये दोनों वजनी चीज है और साथ में जिन्स भी है, तो बस इसमें नसी जो है वो भी हराम है, आदम तफाजुल भी हराम है। क्या है? तफाजुल में। हाँ, अलबत्ता अगर वो चांदी को सोने के बदले में बेचा जाए तो चूंकि इसका जिन्स मुख्तलिफ है तो इसी वजह से तफाजुल तो हलाल होगा लेकिन उधार पर भी हराम होगा। अर्ज यह है कि सच में कभी उधार हो ही नहीं सकता, तफाजुल कभी होगा कभी नहीं होगा। अगर तफाजुल होगा, तफाजुल कभी यानी कभी होता है कभी नहीं होता। बस अगर सोने को सोने के बदले में या चांदी को चांदी के बदले में बेचना है तो फिर तो तफाजुल भी हराम होगा। अगर बेचना है तो यदन बियदन मिसलन बिमिसलन बेचना, यानी बराबर बिल्कुल बराबर सराबर और हाथ दर हाथ बेचना होगा। समझ आ गए? लेकिन अगर इसमें जिन्स मुख्तलिफ हो, यानी चांदी को सोने के बदले में, तो चूंकि इसमें कदर तो वजन नहीं हो तो दोनों है, लेकिन जिन्स मुख्तलिफ है ना, तो इसी वजह से तफाजुल तो जायज होगा लेकिन यदन बेयदन होगा। यदन बेयदन तो जानते हो ना, हाथ दर हाथ एक ही मजलिस में कब्जा करना जरूरी है। और साथ में जो है यानी चूंकि अगर जिन्स मुख्तलिफ हो, सोना चांदी के बदले में बेचना, समझे, तो फिर इसमें जिन्स मुख्तलिफ, इसी वजह से तफाजुल के भी बेची जायज है लेकिन एक ही मजलिस में कब्जा करना जरूरी होगा। समझ आगे? लेकिन अगर दोनों एक ही जिन्स हो, यानी सोना सोने के बदले में, तो वजन और कदर और जिन्स दोनों एक है, तो इसमें नसी और तफाजुल दोनों क्या है? हराम है। तो देखो, बेसरफ की सेहत के लिए दो शराइत है। पहला शर्त ये कि इस बया में उधार तो हर हाल में नाजायज है। क्या है? चाहे मुत्तहदुल जिन्स हो या मुख्तलिफुल जिन्स हो, यानी जिन्स एक हो या जिन्स एक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सोना और सरफ में सिर्फ सोना और चांदी बेची जाती है। समझ आ गए? और ये जो है दोनों कदर एक है, तो चूंकि एक शर्त पाई जाती है ना, तो इसी वजह से। और दूसरा शर्त ये है कि जब अवज़ैन मुत्तहिदुल जिन्स हो तो इसमें तफाजुल भी हराम है, जो कि मैंने अभी बता दिया। लेकिन अगर मुख्तलिफुल जिन्स है, यानी सोना सोने की सोने को चांदी के बदले में जाए, तो इसमें तफाजुल तो क्या हो, जायज हो जाएगा, लेकिन यदन बेयदन पर जरूरी होगा। देखो, फ़इन बाअ फ़िज़्ज़तन बिफ़िज़्ज़तिन, चांदी अगर बेचे चांदी को चांदी के बदले में, औ ज़हबन बिज़हबिन, या सोने को सोने के बदले, लम यजुज तो नहीं जायज है, इल्ला मसलन भी मसलन, तो जायज नहीं है मगर बराबर सराबर। वइन इख्तलाफा फिल जौदती, अगरचे उम्दगी और गड़ाई में मुख्तलिफ हो, यानी एक सोना कम हो खालिस ना हो, दूसरा जो है बिल्कुल खालिस हो, यानी रद्दी और गटिया सिफात को नहीं देखा जाएगा बल्कि सिर्फ जिन्स को दे। जब जिन्स एक है, चाहे एक तरफ जो है वो कम थोड़ा सा खालिस ना हो, दूसरी तरफ खालिस हो, लेकिन फिर भी हराम होगा। अच्छा, वला बुद्द मिन क़ब्ज़िल अवज़ैन क़ब्ल अल-इफ़्तिराक़, मैंने बता दिया कि ऐसी सूरत में जो है मुत्तहिदुल जिन्स वक्त, यानी उधार तो हर सूरत में हराम है, ये समझ आ गए? तो बस कब्ज़ जो है दोनों पर अवज़ैन पर कब्ज़ ज़रूरी है, समझ, इफ़्तिराक़ से पहले यानी जुदाई से पहले। वला बुद्द मिन क़ब्ज़िल अवज़ैन, और क्या होगा? वला बुद्द मिन क़ब्ज़िल अवज़ैन, और ज़रूरी है दोनों अवज़ों पर कब्ज़ा करना जुदा होने से पहले, क़ब्ल अल-इफ़्तिराक़, जुदा होने से पहले। वइज़ा बाअ ज़हब बिल-फ़िज़्ज़ति जाज़त तफ़ाज़ुल वजबत तक़ाबुज़, और जब बेची सोने को चांदी के बदले में, जायज़ तफाजुल हो तो जायज़ है, कमी बीची वजबत तक़ाबुज़ हो, और जरूरी है दोनों तरफ से कब्जे का होना, यानी उधार जो है यहाँ पर नहीं चलेगा बल्कि मजलिस में कब्जा जरूरी है। क्यों? क्योंकि जिन्स जो है उसका एक नहीं है लेकिन कदर पर भी एक है, वो क्या है? वजन होना।
وَإِنِ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ، اور اگر جدا ہو گئے بے صرف میں، قبل قبض العوضین، دونوں عوضوں پر قبضہ کرنے سے پہلے، او احدہما، یا دونوں میں سے ایک پر قبضہ ابھی تک نہیں ہو چکا، بطل العقد، تو پھر عقد باطل ہو جائے گی. میرے خیال سے آج کے لیے کافی ہے، زیادہ پڑھ لیا الحمدللہ. تم الحمدللہ انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے بالکل وقت پر، کیونکہ ہم نے زیادہ پڑھ لیا ہے نا، اور ساتھ میں ٹیسٹ بھی لیتے ہیں. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ آ رہی ہوگی. اب کہہ دے ٹیسٹ دے دوں یا نہیں؟ دے دیں. اچھا چلو دیتی ہوں. میں دیکھ لوں کہاں تک ہوا تھا. سوم میں وہ کفارہ جو ٹاپک ہے نا اس کیا آپ کیا کہہ رہی ہے؟ باب سوم کا جو ٹاپک ہے نا اس میں کفارہ تک ہو گیا تھا، اس میں کفارہ. اچھا کفارہ ہوا، الکفارۃ مثل کفارۃ الظہار یہاں تک ہوا تھا نا. تو دیکھو ومن جامع فیما دون الفرج فانزل فعلیہ القضاء ولا کفارۃ علیہ، یہ ہوا تھا یا نہیں؟ یہ سوال آپ یہ ہو گیا تھا نا کفارہ، جو ابھی آپ نے بولا کہ کفارہ بالکفارہ. اچھا چلو ٹھیک ہے، یہاں سے ایک اور مسئلہ شروع ہو رہا ہے کہ ومن احتقن او استعطى او اقتر في اذنه، سمجھا گئے؟ مل گیا عبارت ہو ومن احتقن او استعطى، یعنی ایک کفارے کی بات ہے. وليس في افساد الصوم في غیر رمضان کفارۃ، یہاں تک تو ہو گیا تھا نا. ومن احتقن او استعطى او اقتر في اذنه او دواء جائفة او عامة بدواء رطب فوصل الى جوفه او دماغه افطر. یہاں سے جو ہے وہ یہاں سے آپ کر لیں، آپ لوگ کر لیں کہاں تک اعتکاف دے دوں یا نہیں، تاکہ کتاب الحج جو ہے پھر شروع کر لیں. اعتکاف بہت چھوٹا سا ایسے ہی ہے، وہ بھی شامل کر لے، یعنی آخر تک کر لے کتاب الحج تک. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں ٹھیک ہے، زیادہ نہیں ہے، صحیح ہے. باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہے ریکارڈنگ والے آپ لوگ بھی سن لے، سمجھے؟ ومن احتقن سے لے کر کتاب الحج تک، کتاب الحج شامل نہیں ہوگا یہاں تک جو ہے، یعنی اعتکاف باب الاعتکاف بھی اس میں شامل ہوگا. آپ لوگ جو ہے خوب تیاری کر لیں، انشاءاللہ کل میں جو ہے 9 بجے بھیج دوں گی اگر زندگی رہی. باقی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو پھر پوچھ لیں، ورنہ اسی پر اتفاق کرتے ہیں.